स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन किया था, लेट मी सी द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेज नंबर 58 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमें, पेज नंबर इज 59। ठीक है एवरीवन? लेट मी चेक। श्रद्धा, शायद से श्रद्धा डोमकावे। हाँ सर। चलो मैडम। हाँ सर, स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट। सेकंड, पहले क्वेश्चन देखने दे। अर्चना एंड प्रेरणा पार्टनर शेयरिंग पीएसआर 2:1, सो देयर रेशियो इज 2:1, बराबर? हाँ। हेल्प ऑफ following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and P&L and balance sheet for the year ended 31st March 19. अच्छा, हाँ मैडम बोलो। हाँ सर, स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट। इसी ओपनिंग स्टॉक, राइट? हाँ। ट्रेडिंग डेबिट, ओके। पेटेंट्स एसेट, बैलेंस शीट साइड। परफेक्ट। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स। या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी एसेट्स। यस, इट इज अ स्टॉक। हाँ, परफेक्ट। अगर स्टेशनरी होता तो एक्सपेंस है, दिस इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इट इज एन असेट। परफेक्ट। हाँ। ट्रेडमार्क भी एसेट्स। ट्रेडमार्क इज एन असेट। बिल्स रिसीवेबल भी एसेट। बिल्स रिसीवेबल भी एसेट सर। यस यस, हाँ। And electricity charges, P&L debit. Is P&L debit expense. Wages trading debit. Perfect. Heating and lighting trading debit. Perfect. Manufacturing expenses. Trade expenses P&L debit. Yeah, it depends on whether, right? Trade expenses depends whether they will come in trading or P&L. Depends on the other items like general expenses or miscellaneous expenses or sundry expense. If Okay, balances both trade expenses as well as sundry or miscellaneous or general expenses, then trade expenses will be debited to trading and other expense will be debited to P&L. अब इसमें मुझे नहीं दिख रहा है बाकी कोई दूसरा ऐसा एक्सपेंस है, बराबर ना? Yes sir. ये P&L में जाएगा। Okay sir. Yes, P&L. Sales return trading credit, sales से माइनस होगा। Okay, sales से माइनस होगा, good. Land and building assets. Asset, yes. Furniture भी asset. Perfect. Cash at bank asset. Yeah. Investments भी asset. Yes. And drawings, capital account debit side. Capital debit. Bad debts asset side. No, sorry sir. P&L debit side. P&L debit loss है, हाँ. और purchases trading debit. Perfect. And capital अर्चना और प्रेरणा का capital credit side. अच्छा, मेथड कौन सी है? फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? Fluctuating sir. Yeah, because there are no current accounts. Right. हाँ. And other loans liability side. Perfect. Reserve fund liability. Yes, any fund is a liability. Provident fund liability, reserve fund liability, general reserves, any reserves is a liability. Okay sir. ठीक है? So reserve fund, general reserve, provident fund, right? They has to be credit balance and they are the liabilities. Yes. Okay sir. Bills payable भी liability. Creditors liability, bills payable liability. Okay. Purchase return trading debit, purchase से minus होगा. Minus करेंगे. RDD P&L credit. Perfect. It is old RDD to be cancelled now. Okay. And sales will be trading credit. And interest will be P&L credit. ये interest allowed है, interest received है. Interest received sir. Fed income. Next adjustments. Stock on 31st March 2019 is valued at cost price rupees 12,000 and market price rupees 17,000. So हम cost price लेंगे 12,000. That is closing stock. तो वो trading के credit में. Perfect. And asset side. Perfect. हाँ. Our customer Mr. Shekhar failed to pay his dues of rupees 800. So हम ये sundry debtors से less करेंगे. Okay.
एंड P&L के डेबिट साइड में बैड डेट्स में ऐड करेंगे. परफेक्ट. हाँ, बट 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ. तो हम पेटेंट से लेस करेंगे. हाँ, पेटेंट्स 2000 के, उसमें से 1/8 माइनस होगा, बराबर. हाँ, एंड देन हम इससे आई गेस P&L में ऐड करेंगे. ये P&L डेबिट एक्सपेंस, एनीथिंग टू बी रिटर्न ऑफ विद इन लॉस, बराबर ना. राइट, P&L को डेबिट करना मतलब राइट ऑफ करना. ओके सर. P&L डेबिट करना मतलब राइट ऑफ करना, मतलब उसको एक्सपेंस. assets are written off. Assets are written off means assets are converted into losses. When ओके सर. we convert assets into losses, we say assets are being written off. So ओके. depreciation is written off. This is actually amortization because we are writing off intangible asset. But 12th में हम उसको depreciation बोलेंगे, but technically it is not depreciation, it is amortization. ठीक है? ओके सर. Depreciation on the patents 1/8. आगे. हाँ. A part of furniture rupees 5,000 is purchased on 1st October 2018. अच्छा, so जो ये पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 परचेज, इसका क्या इफेक्ट रहेगा मैडम, या ये जस्ट तो ये 13,000 है फर्नीचर हमें दिया हुआ. तो उसमें से 8,000 पे पूरे साल का लगेगा. 5% कितना परसेंट? 5%. क्लोजिंग फर्नीचर 13,000 है, बराबर. हाँ, राइट सर. हमने बीच में कुछ तो परचेज किया 5,000. हाँ, तो 5,000 पे आई गेस 6 मंथ्स का लगेगा. परफेक्ट. हाँ, 6 मंथ्स का जितना भी परसेंट है आगे उतना लगेगा. और रिमेनिंग 8,000 पे पूरे साल का. परफेक्ट. सो ऐसे नहीं लिखा है उन्होंने कि इट इज अनरिकॉर्डेड. अगर उन्होंने लिखा होता कि फर्नीचर ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर, इट इज अनरिकॉर्डेड, अगर ऐसे लिखा होता तो मैं बोलता फर्नीचर में मैं ऐड करता और मैं क्रेडिटर्स में ऐड कर देता, फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया ऐसे मान के. ठीक है. अगर ऐसे लिखा होता तो फिर ऐसे मानता कि मेरा 13,000 प्लस 5,000 टोटल फर्नीचर 18,000 दिखता इन दैट केस. अगर वो अनरिकॉर्ड होता तो फिर 13,000 पे पूरे साल का लगता एंड 5,000 पे 6 मंथ्स का लगता. बट ऐसे नहीं है, दिस इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड और वो 13,000 में छुपा है. सो 13,000 में से 8,000 पूरे साल का है, उसमें पूरे साल का लगेगा एंड 5,000 6 मंथ्स का है, उसमें 6 मंथ्स का लगेगा. गुड. यस सर. हाँ, सो फिफ्थ वाला डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%. बराबर. तो रिस्पेक्टिवली हम उनसे वो लेस करेंगे एसेट साइड में. राइट. एंड देन P&L डेबिट में डेप्रिसिएशन अकाउंट के नीचे ऐड करेंगे. एक्सपेंस में ऐड होगा. हाँ. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस रुपीज 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200. तो Yeah. हम उन्हें अभी वेजेस का हम आउटस्टैंडिंग बोल के ट्रेडिंग डेबिट में ऐड करेंगे. फिट. एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में P&L डेबिट ऐड करेंगे 200. एंड देन लायबिलिटी साइड में ऐड करेंगे. Yeah, perfect. They are expenses and payable, therefore adding expense, adding liability. Allow interest on capital at the rate of 3%. इसके effects? सो हम अर्चना का है 40,000, उस पे 3%, और प्रेरणा का है 20,000, उस पे 3%. तो जितना भी आएगा हम उनके कैपिटल साइड में ऐड करेंगे. इसका मुझे लगता है 3%, 1% आएगा 400, बराबर. हाँ सर. तो 3% आएगा 1,200, इसका 1% आएगा 200, तो 3% आएगा 600, बराबर ना. ओके सर. टेस्ट लगेगा 1200, इसको लगेगा 1,200 एंड 600. राइट. अब इसका नेक्स्ट इफेक्ट आएगा P&L डेबिट में ऐड करेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक्सपेंसेस से P&L के डेबिट में ऐड होगा. और दूसरा इफेक्ट सो वो कैपिटल में ऐड करेंगे ना. कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा. P&L डेबिट तो कैपिटल क्रेडिट. राइट सर. गुड. चलो, थैंक यू. वेलकम सर. चलो कर दे स्टार्ट. अब आगे क्वेश्चन ठीक से सॉल्व करेंगे. ठीक है. या लेट्स स्टार्ट. एवरीवन, चलो मैं भी क्वेश्चन मेरे इधर मोबाइल में ओपन करता हूं. ठीक है. डिस्कसिंग द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको हिंट देगा, क्वेश्चन समझाएगा आपको. ठीक है. सो पहले क्वेश्चन ठीक से समझो एंड फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे. क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग.
पेज नंबर 59 लिखो वहां पे टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 59 टेक्स्ट बुक. योर सेफ फाउंडेशन नोट्स हैव बीन प्रिंटेड. वो आ गए. मैं 12th के नोट्स प्रिंटिंग को दिया हूं, तो एक दो दिन में वो भी आ जाएंगे. एंड देन आई विल इस वीकेंड में सैटरडे संडे ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नोट्स. ठीक है. सो मैं वो आपको बोल दूंगा कैसे होगा, कैसे करना है. ठीक है. बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. आगे. आई विल शेयर ए गूगल लिंक. एक गूगल फॉर्म की लिंक शेयर करूंगा. यू हैव टू फिल अप योर एड्रेस इन डिटेल. वो मैं उसमें लिख दूंगा. एंड अकॉर्डिंगली वी विल कैरी ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. कैसे होगा, क्या होगा, आई विल अपडेट यू मीनवाइल, सो डोंट वरी एट ऑल. लेट्स सी. पहले डेबिट साइड को हम पोस्ट करते हैं. इन द बुक्स ऑफ डैश 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 जो भी है, अर्चना एंड प्रेरणा. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. ठीक है. जनरली मुझे 1/4 पेज ट्रेडिंग के लिए लगता है एंड द 3/4 पेज P&L के लगेगा. फिर बैलेंस शीट as on 31st March 19. Liability side, asset side, and then it's my capital. Capital accounts. Archana Prerna. Let's start posting. Every item of the trial balance will be posted at one unique place. Can I start? Yes. To opening stock. Which is 8,560. Patents, intangible assets. 2,000. Then sundry debtors. 18,500. Then stock of stationery. Stock है. Now the question is, try to understand, ये stock कौन सा है? Is it opening stock or is it a closing stock? If it is the opening stock, I should debit it to P&L debit. If it is a opening stock, जैसे हम opening stock of goods trading के डेबिट पे लेते हैं, वैसे opening stock of the stationery हमने P&L के डेबिट पे लेना चाहिए. But if it is a closing stock, तो asset में आएगा. I don't know. I need to figure it out because ऐसे कुछ लिखा नहीं उन्होंने. They are not very specific. This stock belongs to which? ठीक है. हम क्लोजिंग स्टॉक बल के सॉल्व करते, कोई प्रॉब्लम नहीं. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. अगर वो ओपनिंग स्टॉक होता ना, तो P&L के डेबिट पे आएगा. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. अगर इससे आंसर टैली नहीं होता हमारा उनके साथ, P&L का प्रॉफिट अलग आता है, तो हम वहां पे डाल के देखेंगे क्या होता है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ऐसा उन्होंने कुछ एजम्पशन स्पेसिफिकली लिखा नहीं है. सो उन्होंने डेट भी नहीं लिखी ना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की, 1 अप्रैल या 31 मार्च. इट कैन बी बोथ ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग. 3,000.
देन ट्रेडमार्क, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं, आप बाहर लिखो। ट्रेडमार्क्स इज इंटेंजिबल एसेट 2000। देन बिल्स रिसीवेबल, bills receivable are 6300। then electricity charges P&L debit, yes there is a outstanding की adjustment 1450। then wages, उसमें भी adjustment है, outstanding ही है, इनर कॉलम में 950। सेल्स रिटर्न, सेल से माइनस होगा, बाय सेल जब मिलेगा तब लिखूंगा, डोंट वरी। लेस रिटर्न्स 950, नहीं अलग है कुछ तो। सेल्स रिटर्न इज 400। अच्छा मैं डायरेक्टली गया, मैं एक कुछ तो मेरे से मिस हुआ है, ठीक है मैं लिखता हूँ वो 400। सेल्स रिटर्न के पहले ट्रेड एक्सपेंस हीटिंग एंड लाइटनिंग 1000 है, वो ट्रेडिंग में आएगा। हीटिंग एंड लाइटनिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिखो, दैट इज 1000। हीटिंग एंड लाइटनिंग, ट्रेड एक्सपेंस P&L में आएंगे, उसका मैं रीजन भी लिख के दूंगा इनमें, सो डोंट वरी एट ऑल। जिनको पता है अच्छी बातें, नहीं है तो वो समझ लेना 850, दैट इज द स्टैंडर्ड एजम्पशन, वो हम लिख के लेंगे बाद में। सेल्स रिटर्न 400 माइनस क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग शायद से उसको डेप्रिसिएट करना है, इनर कॉलम में 22,000। देन फर्नीचर, उसको भी डेप्रिसिएट करना है इनर कॉलम में, फर्नीचर विच इज 13,000। उसकी एक वर्किंग नोट करेंगे ठीक से, वो डेप्रिसिएशन कैसा है वो ढूंढने के लिए, उस पर डेप्रिसिएशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट, कैश एट बैंक असेट, आई एज्यूम इट इज एज पर ECB, जो लोग ये कर रहे हैं, DRS कर रहे हैं एट फाउंडेशन लेवल, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ACB का होगा बैलेंस। कैश एट बैंक 5000। देन नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स असेट्स, which is 7,500। देन ड्राइंग्स, डेबिट है तो कैपिटल के डेबिट में डालो, 1,200 and 900। बैड डेट्स P&L डेबिट, जिसको हम ओल्ड बैड डेट्स बोलते हैं, इसे ओल्ड वगैरह नहीं रहता, वो खाली रिकॉर्डेड है इसी ईयर के, बट रिकॉर्ड किए थे हमने। 200 परचेसेस, 2 परचेसेस, इनर कॉलम में रिटर्न्स है इसलिए 23,700। एवरीथिंग इज डेबिट रिमेन्स डेबिट एक्सेप्ट सेल्स रिटर्न, जो सेल से माइनस होता है। कैपिटल्स 40-20, क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट पे बाय बैलेंस, कैपिटल्स में शो डेबिट बैलेंस है, ऐसे नहीं कि वो क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे, इट कैन शो एनी बैलेंस बिकॉज़ द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में शो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट है तो क्रेडिट पे लिखेंगे, डेबिट तो डेबिट पे लिखेंगे। बाय बैलेंस बट डाउन, दिस इज ओपनिंग बैलेंस 40-20। हाँ अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे, बिकॉज अगर डेबिट हो सकता है तो करंट अकाउंट का बैलेंस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अदर लोन्स लाइबिलिटी में, अच्छा उसमें एक और चीज है कि उसमें उन्होंने हमें रेट नहीं लिखा 10%, 12%, अगर वैसे लिखा होता तो हिडन एडजस्टमेंट बन जाती। अदर लोन्स which is 3,000। देन रिजर्व फंड, मैंने बोला लाइबिलिटी में, एक्चुअली वी शुड राइट बिलो कैपिटल रिजर्व फंड,
1000 मे बी आज आपको याद रखना पड़ेगा, बट जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटर में डेथ करोगे ना तो आपको याद भी रह जाएगा कोई लाइबिलिटी में रहता है अपने आप. देन क्रेडिटर्स, 17,500. नेक्स्ट बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी में 5,000. परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस, रिटर्न्स 1,000. नेट परचेसर 22,700. आरडीडी, क्रेडिट को क्रेडिट में रखो बाय पीएनएल, पीएनएल के क्रेडिट में बाय आरडीडी. ये एक्चुअली ओल्ड है, जो लास्ट ईयर में डेबिट किया था पीएनएल को, आज उसको कैंसिल करो क्रेडिट करके 500, बिकॉज नया आरडीडी आ सकता है इस ईयर में. सेल्स 30,200. So your now net sales are 29,800. Then interest credit वाला interest है by interest. By interest which is 310. सर क्रेडिट साइड भी एक जगह पे हमने पोस्ट कर दी. अब सर अब क्या करना है, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स. लेट्स स्टार्ट. क्लोजिंग स्टॉक as on 31st March 2019 is valued at cost price 12,000, market price 17. We take whichever is lower as per concept of prudence, concept of conservatism. हम कंजर्वेटिव रहते हैं, हम लोअर लेते हैं. बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,000. असेट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक. एक्चुअली हम क्लोजिंग स्टॉक है ना उसकी कॉस्ट इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर रहे हैं. ये कॉस्ट ट्रांसफर की एंट्री होती है एक्चुअली. $12,000. Again, next, one of the customer became bad. Lex, new bad debts 800 रुपए. There is no RDD, there is no PDD. बाहर लिख दो डायरेक्टली. 17,000, I think 700. 17,700 P&L के डेबिट पे ऐड न्यू 800 ऐड करो, टोटल हो गया 1,000. Recorded bad debts was 200, unrecorded was 800. When I will record, total bad debts become 1,000. Debtor से माइनस हो गया, लॉस हो गया, P&L डेबिट. नेक्स्ट, 1/8 of the patents are to be written off. Less 1/8 write off. 2,000 का 1/8 नहीं आता है. 1/8 2,000 का 1/4 तो आ सकता है. फोर्थ पार्ट 5,000 रहेगा. 5 + 5 + 5 + 5 20. सो 1/4 पार्ट कितना रहेगा 5,000. उस 1/8 मतलब उसका भी हाफ. 5,000 का 2,500. सॉरी 2,000 कर रहे हो ना, सो 2,000 का रहेगा 500 500 500 500 500 500 500 500. उसका हाफ 250. सो इट इज 250. ठीक है, लिखो 250. सो 1750 बचेगा. ये डेप्रिसिएशन है. देन दे हैव आस्क्ड अस टू डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%.
लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 2200। मेरे हिसाब से 19,800 बचेगा, 19,800। देन फर्नीचर पे उन्होंने हमें 5% डेप्रिसिएट करने को बोला, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। मैंने इसको वर्किंग नोट नंबर 1 बोल दिया। सर कैसे करोगे वर्किंग नोट नंबर 1? कहां पे स्पेस है क्या मुझे? लेट मी फाइंड आउट। अच्छा वहां पे नहीं है, ध्यान देना। आप आपके पास स्पेस है, मेरे पास स्पेस नहीं है। या चलो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ, इतना कुछ नहीं। चलो फिर कंफ्यूजन नहीं, बच्चे बोलेंगे सर इधर क्यों लिख रहे हो आप। लेट मी ऐड द पेज। यहाँ पे ऐड पेज बोलता हूँ मैं। हम्म नाउ दिस इज द पेज, वर्किंग नोट नंबर 1। depreciation on furniture, क्लोजिंग फर्नीचर एज पर ट्रायल बैलेंस इज 13,000। मतलब है आपका 31 मार्च 19 का फर्नीचर है, ये 31 मार्च 19 का फर्नीचर है। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 19 का है। एंड इन बिटवीन द ईयर 1 अक्टूबर को 18 को यू हैव परचेस ए फर्नीचर ऑफ 5,000। सो दिस 13,000 इज आफ्टर एडिंग 5,000। तो ओपनिंग में कितना था? 8,000। Therefore 8,000 पे 12 मंथ्स का डिप्रेशन लगेगा एंड 5,000 पे 6 मंथ्स का लगेगा। इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज फॉर द पीरियड फॉर विच यू आर यूज द असेट। आग बंद करके डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो या डेप्रिसिएशन हो, हमेशा टाइम के हिसाब से दिए जाते हैं। Therefore on opening balance of rupees 8,000 for 12 months, so 8,000 multiply by 8,000 multiply by कितना रे? 5% बोला उन्होंने for 12 by 12। 10% 800 रहेगा। हमें 5 मंथ्स का चाहिए, 6 मंथ्स का चाहिए, सॉरी सॉरी पूरे साल का चाहिए, तो 800 इस पे पूरे साल का चाहिए। नहीं नहीं, 10% 800 रहेगा, 5% 400 रहेगा और पूरे साल का चाहिए, तो दिस इज 400। देन ऑन एडिशन $5,000 for 6 months from the date of addition till the year end। 5,000 पे 5% for 6 months, 5,000 पे 5% for 6 months। 5,000 का 5%, 10% 500 आएगा, 10% 500 आएगा, उसका हाफ 5% 250 एंड 250 पूरे साल करेगा, मुझे उसका हाफ चाहिए 125। सो माय टोटल डेप्रिसिएशन इज 525। चेक करो बराबर है क्या? इज इट क्लियर? टोटल डेप्रिसिएशन 525 होना चाहिए। परफेक्ट, 525 525। सो बचेगा वो 12,475। क्या बचेगा? 12,475। सो टोटल डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट पे टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहले पेटेंट्स लिखो, उसका 1/8 जो कुछ भी है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग एंड फिर फर्नीचर। पेटेंट्स का कितना राइट ऑफ हुआ? 250, इनर कॉलम में 250। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है? 2,200।
और यहां पे कितना है 525। सो ये 75 तो मुझे दिख रहा है बाहर। 4 + 5 9, इज इट 2975? टोटल डेप्रिसिएशन इज 2975। टोटल डेप्रिसिएशन इज 2975। सर पेटेंट सेकंड इफेक्ट क्या दिया ना मैंने अभी, एक साथ दे दिया, डेप्रिसिएशन है ना, ठीक है 2975, सब डेप्रिसिएशन एक साथ ही दे दिया मैंने, ठीक है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। एडजस्टमेंट 3 हो गई, एडजस्टमेंट 4 हो गई, एडजस्टमेंट 5 हो गई। एडजस्टमेंट 4 इज अ इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट एन एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट 5 हो गई। एडजस्टमेंट 6, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300, एड इन वेजेस 300, so 1250, add in expense, add in liability, outstanding wages 300। देन उसके बाद उन्होंने बोला है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200, एड आउटस्टैंडिंग which is 200, 1650, add in expense, add in liability, कितनी है वो एक सेकंड 200। सो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गए 500, एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी। ये नेक्स्ट ईयर में पेड होगा, ये नेक्स्ट ईयर में पेड होगा। आज लाइबिलिटी, इस ईयर के एंड में लाइबिलिटी है जो नेक्स्ट ईयर में पेड होगी आगे। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, या पहले यहाँ पे क्रेडिट पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Obviously, I will provide for entire year because capital is from the beginning. Interest on capital. At what rate? 3%. This is 1200 and this is 600. लाइबिलिटी में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड मतलब लाइबिलिटी में ऐड, कैपिटल क्रेडिट मतलब ऐड। तो दूसरा इफेक्ट डेबिट होना चाहिए, P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अर्चना एंड क्या नाम है उनका, प्रेरणा। इंटरेस्ट इज 1200 and 600, 1800। ठीक है आगे। I think all adjustments are done. There is no hidden adjustment. 1 to 7 सब adjustments हो चुके हैं. So now we have to just close it. Let's find out. पहले GP 800 तो मुझे दिख रहा है, 30 41, then 41,800 क्रेडिट की टोटल है। जीरो हर जगह पे जीरो है तो एंड में भी जीरो। सेकेंडरी 6 + 5 11, 11 + 9 20, 11 + 9 20, 2 carried, 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 16 2 + 18, 8 नीचे रहा, 1 कैरिड फॉरवर्ड हुआ, 8 + 1 9, 9 + 22, 9 + 22, अगर 10 ऐड करता तो 32 मिलेगा, -1 31, 31 + 1 32, 32 + 1 33, 33 मुझे चाहिए 41, 33 में मुझे 8 ऐड करना होगा, 8 8 + 33 इज अ 41, जो नीचे 41 है। सो दिस इज माय जीपी। चेक करो ये मेरा बराबर है या रॉन्ग है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, होपफुली करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक लाइन रखनी चाहिए थी, बाय जीपी। ब्रॉट डाउन 8290। अच्छा यहाँ पे देखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट है नेट लॉस है, आई डोंट नो कैसे ढूंढेंगे, ध्यान देना।
एवरीवन। अब देखो थोड़ा एक टेंटेटिव देखो, टेंटेटिव मैं कैसे ढूंढता हूं, ध्यान देना। मैं कैसे ढूंढता हूं, ध्यान देना। सर प्रॉफिट है बट कैसे देखेंगे, ध्यान देना। देखो क्रेडिट की टोटल टेंटेटिव देखो, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं। 8,200 प्लस 500, 8,700 प्लस वो 90 प्लस 10, वहां पे 10 हो जाए 100 हो जाएगा। सो 8,200 प्लस 500, 8,700 प्लस 300, 9,000, 9,000 प्लस 90 प्लस 10, 9,100। क्रेडिट की टोटल 9,100 है। उससे ज्यादा रहेगी डेबिट की टोटल तो लॉस, अगर कम रहेगी तो नेट प्रॉफिट। अब देखते हैं 1000 प्लस, देखो 1000 प्लस 1000 में ऊपर ऊपर देख रहा हूँ। 1000 प्लस 1000 2000, 2000 प्लस 200, 2000 प्लस 2000 4000, 4000 प्लस 1000 5000, 5000 प्लस ये 6 प्लस 8, वो ऑलमोस्ट 1500 है। 1 2 4 5, 5 प्लस से 1500 ले लो, 6500। ये 1000 ले लो, 925 75 को 1000 ले लो, 6500 प्लस 1000 ले लो, 7000, 7000 समथिंग आएगा। 7000 प्लस 800 ले लो, उसको 1000 ले लो, 8000 समथिंग आएगा, 8500 वगैरह कुछ तो आएगा। 50-50, अच्छा मतलब ऑलमोस्ट 8600 ऐसे कुछ तो, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा किसी भी हालत में। ये 9100 आ रहा है, ये 8500 8600 के इन बिटवीन दिख रहा है मुझे, तो क्रेडिट इज मोर। मैं एग्जैक्ट नहीं निकालने को बोला, मैंने बोला आपको एक टेंटेटिव ले लो। दिस इज 9100, 9100 देखते हैं। अच्छा ये वाली वैल्यूज है। 5 प्लस 5 10, 0 नीचे आ गया, 1 कैरिड फॉरवर्ड। 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 2 22 कैरिड। 6 plus 2 8, 8 plus 8 16, 16 plus 9 25, 25 plus 8 25 plus 8 25, 33, 33 plus 8 33 plus 8 41, 4 carried, 1 नीचे रहा, 4 carried, 4 plus 1 5 6 8 9, 9 को 9, so 825 मेरा नेट प्रॉफिट होना चाहिए। चेक करो है क्या, 2 NP चेक करो, नेट प्रॉफिट 825 परफेक्ट आया, मेरा भी आया, आप लोगों का भी आया, रियली गुड। एनपी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अर्चना एंड प्रेरणा में इन देयर रेशियो 2:1, 2/3 1/3। डिवाइड होगा क्या, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 3 को 15 से डिवाइड होता है, देयरफॉर ये हमें एग्जैक्टली वैल्यू मिलेगी। 8 8 2 जा सॉरी 3 2 जा 6 2 कैरिड, 3 7 जा 21 1 कैरिड, 3 5 जा उसका डबल चाहिए, 10 1 कैरिड, 15 1 कैरिड 5। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 550 एंड 275। प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड करो बाय P&L। into bracket NP, which is 550 275। Therefore 2 balance brought down। जो भी बैलेंस आएगा, ये 1200 1200 कैंसिल, तो ये बचेगा 40,550। 900 600 हट गया, 300 बाकी है। 300 में से ये कट हो जाएगा, 25 बचेगा, सो 19,975। चेक करो बराबर है क्या मेरा, मैंने डायरेक्टली वैल्यू निकाले कैपिटल्स के।
कैपिटल 40,550, 19,000। एक सेकंड, किसी ने मुझे पूरा आंसर लिखा है, लेट मी चेक। $19,975, परफेक्ट। आगे लाइबिलिटी में आएगा कैपिटल्स। अर्चना प्रेरणा 40,550, 19,975, 19,975 टोटल। 5, 12, 1 carried, 10, 15, 1 carried, 10, 1 carried, 6, 60,525 something, and therefore your balance sheet will tally at, अच्छा 25 तो मुझे स्ट्रेट अवे दिख रहा है, देन 5 plus 5 10, 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 5 plus 5 10, 10 plus 5 15। किधर तुम लोगों का अलग क्यों है सर? 15, 1 carried, 1 carried, 4 डिजिट पे आऊं, 61, 61 plus 1 62, 62 plus 3 65, 65 plus 17, 65 plus 20 ऐड करता हूं, 85 आएगा, minus 3 82, 82 plus 5 87, 87,525, yes, perfect। ले लो, दिस इज द आंसर। जिनको लिखना है जल्दी लिखो, मैं वीडियो ऐड करता हूं, मतलब आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी आपको, ठीक है? इतना कैलकुलेशन भी नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। चलो कंप्लीट करो सो दैट वी कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी किसको इसमें डाउट है? सर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, आरडीडी का रेट एंड आरडीडी की अमाउंट का गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, देखता हूं मैं। देखो हमारा उनका आंसर टैली हुआ, तो जो उन्होंने ट्रायल यहाँ पे लिखा है ना, ये जो उन्होंने हमें ये दिया है क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो दिया है ना, इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। ये जो दिया है उन्होंने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। तो लिख लेना वहां पे एक एजम्पशन, लिख लेना एवरीवन उस क्वेश्चन के नीचे। ठीक है सर, we have told to calculate only GP and NP only in the next question.
अगर उन्होंने खाली जीपी नीनपी निकालने को बोला होगा ना, मे बी दे आर नॉट गिवन यू द एंटायर बैलेंस शीट वैल्यूज. देखते हैं हम, ठीक है. लिख लेना वहां पे एवरीवन. इन दिस क्वेश्चन में नीचे लिखो एज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, राइट, एज इट इज नॉट गिवन अबाउट, राइट, क्या लिखेंगे हम, एज इट इज नॉट मेंशन वेदर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज ओपनिंग और क्लोजिंग, वी अज्यूम इट इज टू बी क्लोजिंग. ओपनिंग भी हो सकती है, जैसे ओपनिंग स्टॉक होता है वैसे ओपनिंग स्टेशनरी भी हो सकती है ना. सो लिख लेना एज इट इज नॉट मेंशन वेदर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज ओपनिंग और क्लोजिंग, वी अज्यूम्ड टू बी क्लोजिंग. ठीक है. अगर ओपनिंग होता तो ध्यान देना क्या हो जाता. अगर ये स्टॉक ओपनिंग होता ना, तो ये जो हमने असेट में लिखा है ना, एवरीवन ध्यान देना, जो हमने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट में लिखा है ना, इसकी जगह हम उसको स्टेशनरी पी एंड एल में ऐड कर देते. इधर कुछ है पी एंड एल में स्टेशनरी नहीं है, हम यहाँ पे ऐड कर देते पी एंड एल में. कहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे ऐड कर देते स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोल के, टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. अगर ओपनिंग स्टॉक है तो एक्सपेंस हो जाएगा. अगर वो ओपनिंग स्टॉक है ना तो एक्सपेंस हो जाता है. जैसे ओपनिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग के डेबिट में एक्सपेंस में डाल दे उसको, वैसे अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होगा ना, टू फाइंड आउट कंजम्पशन, हम उसको पेंडल के डेबिट में डाल देते. बट यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा नहीं है, तो हमने उसको क्लोजिंग स्टॉक मान के उसको कहां पे डाल दिया है, असेट में डाल दिया है. ठीक है. आगे नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें कुछ तो अलग है, देखता हूं मैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 है. ओके, अलग है तो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ. सतीश एंड प्रमोद आर द पार्टनर्स, prepared trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit. Your trial balance is tallied. So obviously you can prepare also balance sheet. कोई दिक्कत नहीं. Your balance sheet will tally. मुझे लगा खाली उतने पर्टिकुलर आइटम्स दिए. ट्रायल बैलेंस टैलीड है तो बैलेंस शीट भी टैली होगी. कोई गल नहीं है, आप बैलेंस शीट करो फॉर योर प्रैक्टिस. एग्जाम में बैलेंस शीट करने की जरूरत नहीं है. आज जस्ट फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट. कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम पूरा सॉल्व करेंगे. अच्छा चलो, कोई मुझे अब तो नॉर्मल है. इधर है ना, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को है ना, प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स बोलो. यहाँ पे बोलो प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द 3%. ठीक है, उधर वर्डिंग में उनकी गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे दो बार प्रोविजन किधर करेंगे ना. अच्छा, कोई भी, आई नीड ए वॉलंटियर. चल वेंकट बोल चल. हाँ सर. हाँ बोल. सर, am I audible? यस. Stock trading debit, परफेक्ट. ट्रेडिंग डेबिट. purchases trading debit, यस. wages trading debit, परफेक्ट. insurance P&L debit, परफेक्ट. पी एंड एल डेबिट. unproductive wages P&L, डेबिट. यस. पी एंड एल डेबिट. प्रोडक्टिव होते तो ट्रेडिंग, अनप्रोडक्टिव तो पी एंड एल. हाँ. warehouse rent P&L, वेयर हाउस रेंट पी एंड एल. अच्छा, पी एंड एल डेबिट. हाँ. carriage outward P&L debit, अच्छा, पी एंड एल डेबिट. ओके, नेक्स्ट. sales return sales से minus, सेल से माइनस होगा. ओके, आगे. export duty P&L debit, परफेक्ट. एक्सपोर्ट इज फॉर सेल्स. पी एंड एल डेबिट. custom duty trading debit, कस्टम ड्यूटी इज ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. व्हेन यू, प्रोडक्शन नहीं बोलूंगा मैं उसको, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी प्रोडक्शन पे, टुडे इट इज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी. कस्टम ड्यूटी व्हेन यू इंपोर्ट द गुड्स, इंपोर्ट करते हो तब वो कस्टम ड्यूटी लगती है. आगे. sundry debtors asset, ओके. investments asset, ओके. tree rent trading debit, Yes, it is related to expense related to factory. Factory is used in the production.
Therefore factory rent is a manufacturing expense trading debit. Okay, Postage and telegram P&L. debit, perfect. Sales. Sales trading credit. Okay, is income trading credit. Dividend trading P&L credit. Is it received or paid? Is it received or paid? Dividend received or dividend paid? Received. और वैसे भी पार्टनरशिप फर्म कैनॉट गिव द डिविडेंड, ओनली कंपनीज कैन गिव द डिविडेंड. वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ व्हाट? पार्टनरशिप. तो जो भी डिविडेंड रहेगा ना वो इनकम ही रहेगा पार्टनरशिप्स के लिए. कंपनीज के लिए डिविडेंड कैन बी एक्सपेंस. कंपनीज के लिए डिविडेंड कैन बी एक्सपेंस बिकॉज़ कंपनीज गिव्स डिविडेंड. ठीक है, आगे. हाँ, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस. ओके सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी. ओके. बैंक लोन लाइबिलिटी. हाँ, उसका क्या एडजस्टमेंट है क्या? कुछ एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट. क्या है बोल? 10% बैंक लोन 3 months 8,000 पे 10 9 months. फॉर 9 months. परफेक्ट. सो हमने लोन कब लिया है? 1 जुलाई 18 को. हमारा ईयर कल खत्म हो रहा है 31 मार्च 19 को. सो जुलाई 18 से मार्च 18 तक 9 months होते हैं. सो 9 months का इंटरेस्ट होना चाहिए, बराबर ना? सो Yes. लेट मी चेक. दिस इज 3/4, बराबर. ये 200 आएगा, दैट विल बी 600. इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 600, बराबर ना? इंटरेस्ट Yes, sir, 600. का 800, तो 9 months का 3/4 कितना रहेगा? 600. सो इंटरेस्ट एक्सपेंस होना चाहिए. डेबिट पे इंटरेस्ट होना चाहिए. है क्या कुछ डेबिट पे इंटरेस्ट? देख P&L में, सॉरी डेबिट पे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे इंटरेस्ट है क्या कुछ? No, sir. क्रेडिट पे है तो उसका इंटरेस्ट अपोजिट साइड ढूंढो. है क्या इंटरेस्ट कुछ? No. नहीं है. तो हम 600 एक्सपेंस में ऐड करेंगे. 600 हम एक्सपेंस में ऐड करेंगे और लोन में भी, लायबिलिटी में भी ऐड करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर सपोज ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे 400 इंटरेस्ट होता तो क्या करता तू? अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे 400 इंटरेस्ट होता तो तू क्या करता? 200 इंटरेस्ट में ऐड करता और 200 बैंक लोन में. परफेक्ट. हमें किसी भी हालत में 600 से 1 रुपए कम नहीं होना चाहिए डेबिट पे. 600 से 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए क्रेडिट पे, डेबिट पे. 600 अगर मैंने लोन लिया है तो मेरा इंटरेस्ट 600 बन रहा है, तो मेरा 600 एक्सपेंस होना ही चाहिए. गुड. नेक्स्ट. The receipts P&L क्रेडिट, देयर इनकम्स. चलो आगे. स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट assets में ऐड. ट्रेडिंग क्रेडिट या डेबिट? डेबिट ट्रेडिंग डेबिट assets में ऐड. क्या? क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट सॉरी क्रेडिट एंड एसेट में ऐड. नेक्स्ट. हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड एंड लाइबिलिटी में ऐड. राइट. हाँ, सर वो प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स बोला ना, हाँ, तो बैड डेट्स में ऐड करेंगे, डेटर्स से माइनस करेंगे. परफेक्ट. डेटर से माइनस होके P&L डेबिट एक्सपेंस में ऐड. हाँ, RDD 3% डेटर्स से माइनस और P&L डेबिट साइड. ओके गुड. हाँ, देन Goods distributed as free sample trading credit हाँ, and फ्लो है. गुड्स बाहर. P&L डेबिट. हाँ, P&L डेबिट में क्या बोल के लेगा तू? P&L डेबिट में distributed as free sample. नो, एडवर्टाइजमेंट. क्या बोल के लेगा? एडवर्टाइजमेंट. सो ट्रेडिंग के क्रेडिट पे आएगा आउटफ्लो बाय, राइट? क्या बोल के आएगा? बाय यूर, क्या बोलते हैं उसको? Distributed as free sample. यस. नेक्स्ट. इट इज आउटफ्लो इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल रहे हैं, एंड ये एक्सपेंस इसलिए P&L डेबिट. आगे. गुड्स ऑफ ₹2000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड. सेल हुए, डिलीवर भी हुए. सेल्स में ऐड एंड डेटर्स में ऐड. अच्छा, तो मुझे बोल, एडजस्टमेंट 3 पहले करेगा, एडजस्टमेंट नंबर 5 पहले करेगा? एडजस्टमेंट 3 पहले करेगा, एडजस्टमेंट 5 करेगा? एडजस्टमेंट 5 पहले करेंगे सर. यस, परफेक्ट. पहले एडजस्टमेंट 5. डेटर्स के 2 एडजस्टमेंट, एक तीसरी और एक 5th एडजस्टमेंट. उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको जाएगा? 5th एडजस्टमेंट को, उसके बाद बैड डेट्स और उसके बाद RDD. गुड. चलो स्टार्ट करते हैं. अब वी विल प्रिपेयर, वी विल आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट. कोई प्रॉब्लम नहीं. हम
एक प्रैक्टिस कर रहे, ठीक है। आगे लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 किधर है मेरे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 59 या राइट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट बुक। This is trading and profit and loss account in the books of dash 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 for the year ended 31st March 19, ठीक है। This is expense side, this is income side। 1/4 पे जनरली ट्रेडिंग के लिए, रिमेनिंग P&L के लिए। दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन। लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड दैट इज असेट्स डेबिट्स। लेट्स स्टार्ट स्पीड में। टू ओपनिंग स्टॉक, $8,700। टू परचेसेस, रिटर्न से शायद से इनर कॉलम में रखो, 18,300। देन वेजेस, उसमें भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 1000। इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 800। कुछ प्रीपेड वगैरह है क्या? नहीं है, बाहर। अनप्रोडक्टिव वेजेस P&L, $1,400। वेयर हाउस रेंट P&L, वेयर हाउस रेंट 600। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब सेल करते टाइम का कैरेज, सेलिंग एक्सपेंस P&L डेबिट। इनवर्ड ऊपर, आउटवर्ड नीचे 1,200। सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा, लेस रिटर्न्स 600। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट P&L, which is 1,400। custom duty at the time of import of the goods, to custom duty 800। next sundry debtors asset, अच्छा उन्होंने कैपिटल वगैरह कुछ नहीं दिया, हमें ट्रायल बैलेंस टैली करके दिया है, कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सन्डे डेटर्स 40,000, अगर ट्रायल बैलेंस टैली है तो बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए 40। नेक्स्ट आगे इन्वेस्टमेंट्स, $15,700 सॉरी। फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री रेंट $1,600। एंड देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम। देखो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में एक एडजस्टमेंट हो सकती है, मैं ये एडजस्टमेंट अभी तक आई नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना। एवरीवन ध्यान देना, हाँ क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। स्टेशनरी एंड पोस्टल टेलीग्राम में एक हो सकता है अनयूज्ड स्टेशनरी और अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प्स, ऐसे एडजस्टमेंट हो सकती है।
अनयूज स्टेशनरी और अनयूज पोस्टल स्टैम्प्स, ऐसे एक एडजस्टमेंट हो सकती है। उसमें क्या करना है, उसको हम एक्सपेंस से माइनस करेंगे और असेट में ऐड करेंगे, एक्सपेंस से माइनस करेंगे और असेट में ऐड करेंगे। अनयूज स्टेशनरी के एडजस्टमेंट क्या होती है, माइनस फ्रॉम स्टेशनरी एक्सपेंस, एड इन असेट। अनयूज पोस्टल स्टैम्प्स, माइनस फ्रॉम पोस्टल एक्सपेंसेस, एड इन असेट। ठीक है, वो एडजस्टमेंट हो सकती है, अभी तक दिखी नहीं है बट होती है। आगे क्रेडिट सेल्स 68,000, सो इनर कॉलम में रखो बिकॉज देयर इज अनरिकॉर्डेड सेल की एडजस्टमेंट। अभी ये दिखेगा आपका 67,400। देन डिविडेंड क्रेडिट पे, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट 2,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर। परचेस आइटम परचेस से माइनस, विच इज 500। परचेस तो दूसरी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो आपको बाहर मिल जाएगा 17,800। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखेंगे विच आर 13,000, फिर 10% लोन दिखेगा इनर कॉलम में। क्रेडिटर्स को आप बाहर लिख सकते हो, but there is no adjustment as such to creditors. 10% bank loan 8,000. Other receipts P and L credit. Which is 1,000. ठीक है, अब एक एक एडजस्टमेंट करेंगे। आई नो दे हैव नॉट गिवन यू सम ऑफ द फिक्स एसेट्स, सम ऑफ द कैपिटल। उन्होंने उतनी एसेट्स और उतनी लायबिलिटीज दिए जितने आपके काम के। क्लोजिंग स्टॉक इज 15,400 बाय क्लोजिंग स्टॉक। $15,400 trading credit, add in asset. Next, outstanding wages, add in expense, add in liability. कितने के आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500, एड इन एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस हो गए 1,500 के। टोटल एक्सपेंस 1,500 के, उसमें से कैश कितने से कम हुई है 1,000, और लाइबिलिटी कितने की बनी है 500। नेक्स्ट आरडीडी 8, सॉरी बैड डेट्स के पहले वो एडजस्टमेंट करनी है अनरिकॉर्डेड सेल की, रहने दो। 1,800 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल आउटफ्लो है, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल एज फ्री सैंपल, कितने के है 1,800। ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट बाहर गए और P&L डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट। ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें ऐड करो, अगर नहीं है तो अलग लाइन आइटम करो। उसके बाद 2,000 के गुड्स सेल हुए बट रिकॉर्ड नहीं हुए थे, एड इन सेल्स अनरिकॉर्डेड। एड 2,000, टोटल सेल्स हो गए 69,400, टोटल सेल हो गए 69,400 एंड एसेट में ऐड होगा डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना है वो 2,000। So my total debtors are now, right? They have taken in trading account, warehouse rent, trading account में लेना है। उनका फॉर्मेट देखो एग्जैक्टली क्या कहां पे लेते हैं, ठीक है।
टू बी वेरी फ्रैंक, नो वन प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली इन रियल लाइफ. ट्रेडिंग अकाउंट होता ही नहीं, जस्ट P&L. कुछ वेयर हाउस रेंट के बारे में लिखा है क्या? यहाँ पे तो वैसे कुछ नहीं है. पहले हमने कुछ क्वेश्चन किया था कि उसमें था क्या वेयर हाउस रेंट? कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ था क्या हमारा जिसमें वेयर हाउस रेंट था? कोई क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर 1 था क्या? अच्छा, मे बी वो अनसॉल्व का रहेगा, अनसॉल्व का, फिर 1. अच्छा, इसको क्या किया था वेयर हाउस रेंट को आपने? तब क्या किया था देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के टाइम क्या किया था? आपने P&L में लिया, देखो आपने P&L में लिया था. आपने P&L में लिया था. आई विल ऑल्सो कंटिन्यू टू टेकिंग इन P&L. P&L में लिया था, ठीक है. सो ट्रेडिंग में लेंगे, डोंट वरी. P&L में लेंगे, सॉरी, पहले भी P&L में लिया है, अभी भी P&L में लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप किधर भी ले लो, नेट प्रॉफिट रिमेन सेम. जीपी आगे पीछे हो सकता है, आगे. अच्छा, उसके बाद मुझे बैड डेट्स की एंट्री करनी है, लेस न्यू बैड डेट्स. जो उन्होंने बोला है, उन्होंने लिखा है 800. So 800 is a new bad debts. So debtors are 41,200. Debtors are 41,200. टोटल 40,000 के डेटर्स थे प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 2,000. माय टोटल डेटर्स आर 42,000. उसमें से 800 के बैड डेट्स हो गए, सो 41,200 लेस आरडीडी टू बी मेंटेन एट. आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3%. 1% 412 रहेगा. 1% 412. 400 का 3 टाइम्स 1,200. 12 का 3 टाइम्स 36. 1260. 1236. So this will be 4, 4, 1 carried 9, 2 गया 39. Is it 39,944? And therefore यहाँ पे सब आ जाएगा 2 bad debts, 2 RDD. Bad debts according to them it is 800. और RDD आया है 1260. 1236, sorry. I think done. So let's find out GP. GP is, let's see. कोई मुझे बोलेगा जीपी कितना आ रहा है अभी? 2 जीपी. डायरेक्टली बोल सकते हो, अच्छी बात, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा मुझे, बाकी कुछ नहीं. ढूंढू? अच्छा, 400, 400, 800, 800 plus 800, 1,600, 1 carried. 69 plus 1, 70, 71 plus 71, 71 plus 15, 86. 86,600 क्रेडिट की टोटल है.
Therefore your GP is GP carried down. हर जगह पे 0 है तो यहाँ पे भी 2 0. 7 plus 8 15, 15 plus 5 20, 20 plus 8 28, 28 plus 6 34, 34 plus 2 36. 3 carried forward, 8 plus 3 11, 11 plus 17 28, 28 plus 1 29, 30 मतलब 30 minus हुआ 56. Is it 56,200? Please confirm. 56,200, perfect. By GP brought down 56,200, and therefore 56,200 plus 3,000, 59,200. Therefore 36 मुझे यहाँ पे 64 लेने होंगे. 36 plus 64 100 हो जाएगा. 1 carried. 8 plus 1 9, 9 13 19 21 29 37 45 47 47 plus 5 52. ठीक है, कुछ अलग आ रहा है मेरा? ये परफेक्ट है ना यहाँ तक? हाँ, 1 कैड आएगा. 8 plus 1 9, 9 plus 1 13 19 21 29 29 plus 8 37 37 plus 8 37 plus 8 45 45 plus 2. कुछ तो नहीं, मेरा और आपका अलग आ रहा है, इससे क्यों? मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए. कंफर्म करो एक बार, या मैंने कुछ लेते टाइम कुछ अलग लिया है? अच्छा ठीक है, एक कोई तो मुझे बोल रहा है. हाँ मैडम बोलो, किधर लेते टाइम मेरी से गलती हुई कुछ? सर कैलकुलेशन में हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से भी चेक किया, सेम आंसर आ रहा है. 48,964. 964. अच्छा ठीक है, ओके नो इश्यूज. मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, मैं मेरे हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ. ठीक है, अच्छा उधर. शिट. हाँ हाँ, तेजस बोल रहे. सर इंटरेस्ट नहीं लिया आपने? हाँ इंटरेस्ट वो बैंक लोन का था ना. अच्छा, वो हिडन एडजस्टमेंट बाकी है क्या? तभी मैं बोलूँ क्या है. अच्छा, हिडन एडजस्टमेंट वो लोन में ऐड, तभी मैं बोलूँ क्या मेरा मिस है. प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन. हाँ, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10% फॉर 9 मंथ, 600 है वो. सो टोटल लोन हो गया 8,600, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंस, तभी टू इंटरेस्ट. इट इज 600. तो अब बराबर आ रहा है. टू एनपी कितना आया नेट प्रॉफिट? हाँ अब बोलो नेट प्रॉफिट. 48,964. 48,964. हाँ, ये कैपिटल में ऐड होगा. अब कैपिटल्स नहीं दिए हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो कैपिटल्स में प्रॉफिट, या लाइबिलिटी में अलग से लिखो नेट प्रॉफिट 49,964. फिर भी बैलेंस शीट टैली हो गया. 48,964 फिर भी बैलेंस शीट टैली होगी, डोंट वरी. फिर भी बैलेंस शीट टैली होगी. इट विल टैली एट 64 तो दिख रहा है मुझे. देन 9 plus
5 64 आ गया मेरा 9 48,009 है ना 9 plus 5 14 14 plus 6 22 carried 50 50 63 63 plus 63 63 plus 8 50 आ गया 63 ये क्यों नहीं लेना पड़ रहा है मुझे ये 48 है ना रे $71 आना चाहिए 64 वैसे का वैसे रहा 9 plus 5 14 14 plus 6 22 carried 48 plus 2 50 50 plus 13 63 63 plus 8 बराबर है 63 plus 8 71 सो मेरे हिसाब से 71,070 पे डाली होनी चाहिए 71,064 पे लेट मी चेक आई डोंट नो ये 64 आता है ना ये 64 है मैंने यहाँ पे 44 लिया है ये 64 होना चाहिए लेट मी कंफर्म 64 है 16 22 carried 17 17 plus 40 57 55 55 plus 5 61 plus 10 71 perfect इतने पे बैलेंस शीट डाली होगी बट दे आर नॉट आस्क यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट सो डोंट वरी एट ऑल दे आर नॉट आस्क यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट गुड अगर आप बैलेंस शीट करते भी ना तो उस पे डाली हो जाता व्हाट कम्स अंडर अदर रिसीट कोई भी हो सकता है सेल ऑफ स्क्रैप एग्जांपल सेल ऑफ स्क्रैप रद्दी सेल करते हो यू डोंट ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर दैट इट विल बी अदर रिसीट्स जिसका हम अलग अकाउंट नहीं करते ना उसको सन्ड्री अदर में डाल देते हैं कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस का अलग अकाउंट नहीं गया वो मिसलेनियस एक्सपेंस सन्ड्री एक्सपेंस में जाएगा अदर एक्सपेंसेस में जाएगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मिसलेनियस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको क्लब कर दिया अदर एक्सपेंसेस में या अदर इनकम में समझ में आ रहा है सो अदर मींस नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस बट यस दे आर द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इसलिए वो लेने पड़ेंगे बट उसको अलग अकाउंट ओपन नहीं करते उसको मिक्स कर देते हैं ठीक है सन्ड्रीज ठीक है कौन सा वो हमारा क्वेश्चन नंबर अब भी 7th हुआ लिखो जिनको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7th हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिखो जल्दी जिनको लिखना है मैं 2 मिनट वीडियो बंद करता हूं मतलब आपको मैं स्क्रीन पूरी दिखा सकता हूं ठीक से हाँ ले लो दे आर नॉट गिवन यू कैपिटल्स वगैरह दे हैव गिवन इनकम्प्लीट ट्रायल बैलेंस बट जो भी इनकम्प्लीट ट्रायल बैलेंस है वो टैलीड दिया उन्होंने सो डेबिट से कोई आइटम्स हटाए होंगे क्रेडिट से कोई आइटम्स हटाए होंगे ऐसे हटाए कि जैसे वो ट्रायल बैलेंस मिसमैच ना हो ठीक है in exam your main answer is obviously trading and P&L trading and P&L good next come to the question number कौन सा हुआ हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 7th हुआ उनका और हमारा जीपी अलग है क्या मे बी इसके वजह से हुआ होगा लेट मी चेक 56,200 है अरे दे हैव टेकन वेयर हाउस रेंट इन P&L ओनली कोई प्रॉब्लम नहीं वेयर हाउस रेंट लिख लेना कहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो वेयर हाउस रेंट इज ऑलवेज टू बी टेकन इन P&L डेबिट रेंट पेड फॉर वेयर हाउस इज P&L डेबिट
नाना एंड नानी आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, दे आर इक्वल पार्टनर। लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिखा नहीं तो हम इक्वली पार्टनर्स लेते हैं भाई, ये हमारे एक्चुअली इंसल्ट है, ठीक है। You are required to give effects of the adjustments in profit and loss account in the balance sheet with the help of following information. ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है एंड यस उन्होंने हमें क्या करने को बोला है, अच्छा P&L एंड बैलेंस शीट। सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं करने को बोला है, क्यों? मे बी उन्होंने हमें डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर दिया होगा, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं इंश्योरेंस P&L डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, उसमें से 20,000 की एडिशन 1 जुलाई को है। सो जब मुझे डेप्रिसिएशन देना होगा 20,000 पे मैं 9 मंथ्स का दूंगा एंड 30,000 पे मैं पूरे साल का दूंगा। 50,000 में से 20,000 मैंने जुलाई में परचेस की, बिगिनिंग से 30,000 है। सैलरीज P&L डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L डेबिट, इंटरेस्ट P&L डेबिट, फर्नीचर असेट, डेटर्स असेट, कैपिटल अकाउंट्स नाना एंड नानी, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 18, मुझे उसमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स मैंने वो 30,000 यूज किया है। 30,000 का 10% कम्स 3,000 फॉर द ईयर, मुझे हाफ ईयर का चाहिए 1,500 एंड आप बोलेगे सर है इंटरेस्ट 1,500, अरे भाई ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है क्रेडिट वाला, मुझे डेबिट पे चाहिए, मुझे डेबिट पे चाहिए, डेबिट पे इंटरेस्ट है ना 1,000 है, तो आई नीड टू ऐड 500, मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस में ऐड करना होगा 500 और लायबिलिटी में ऐड करूंगा 500। आगे दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, क्या पढ़ा, क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 34,500, अकॉर्डिंग टू देम ग्रॉस प्रॉफिट इज 30,500। सो डायरेक्टली P&L से स्टार्ट करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट पे आएगा, प्रॉफिट क्रेडिट पे आएगा ना, क्रेडिट बैलेंस होता है, या इसे लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 34,500, लिख लेना जिनके पास टेक्स्ट बुक है सामने, और ऐसे लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 34,500। सो ओपनिंग स्टॉक की जरूरत नहीं, परचेज की जरूरत नहीं, सेल्स की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस की जरूरत नहीं, उसका आंसर उन्हें डायरेक्टली दिया 34,500। क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट, क्रेडिट इज इधर लायबिलिटी और प्रॉफिट, इसलिए ये प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सो P&L स्टार्ट करेंगे बाय GP से, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 18 से 15 मंथ्स आएंगे, देखो 1 अप्रैल 18 से 15 मंथ्स आएंगे 30 जून 19, अप्रैल से मार्च 12 मंथ्स, अप्रैल से मार्च 18 19 12 मंथ्स, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, ऐसे 12 मंथ हो गए। सो इसमें से करंट ईयर में आता है 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 एंड नेक्स्ट ईयर में आएगा 1 अप्रैल 19 टू 30 जून 19। 12 मंथ्स इस ईयर के, 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के, 12 मंथ्स इस ईयर के, 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के। सो जो मैंने पेड किया, कितना है मेरा इंश्योरेंस, मेरा इंश्योरेंस है 15,000, 15,000 जो मैंने पेड किया है वो 15 मंथ्स के लिए, देयरफॉर 1 मंथ का होगा 1,000 पर मंथ। सो P&L में आएगा 12,000 12 मंथ का एंड असेट में आएगा 3,000 3 मंथ्स का। 15,000 को स्प्लिट करके लिखेंगे, 15,000 में से 12,000 इस ईयर का है, एक्सपायर्ड हुआ है, बेनिफिट खत्म हुआ है, P&L डेबिट, 3,000 नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट मिलेगा बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर का है, वो असेट में जाएगा। आगे डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10% 5%, कोई दिक्कत नहीं। राइट ऑफ रुपीज 1,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन 5% दोनों डेटा से माइनस होकर P&L डेबिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड असेट में। ट्रेडिंग तो हो चुका है,
तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखने की जरूरत नहीं, खाली अब इसको असेट में लिखेंगे एंड हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. एंड आई रिस्पेक्ट बोर्ड फॉर दिस चेंजेस. मतलब मैं देता हूँ गालियां बट आई रिस्पेक्ट कि ये चेंजेस सच्ची में जरूरत है, कि खाली पी&एल करना, खाली ट्रेडिंग करना, खाली बैलेंस शीट करना, ऐसे चेंजेस की जरूरत थी. पता है पहले वो क्यों नहीं देते थे, आई डोंट नो. मैं मानता हूँ सिलेबस डिफिकल्ट रखो, चाहे तो पेपर सिंपल निकालो, जैसे सीबीएसई ना आईएससी वाली करते हैं. उनका सिलेबस डिफिकल्ट रहता है बट पेपर नॉर्मल रहते हैं. दे गिव नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, फिर पेपर सिंपल रखो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, आगे. मैं वॉइस इज ब्रेकिंग. मैं बोल रहा था कि एक जैसे सीबीएसई वगैरह करते हैं ना, सिलेबस वास्ट रखते हैं, पेपर सिंपल रखते हैं. पेपर डिफिकल्ट नहीं रहते उनके, बट दे गिव नॉलेज, ए लॉट ऑफ नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. वैसे होना चाहिए. आगे. इसमें कैपिटल वगैरह कोई जरूरत नहीं हुई. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60. Text book 60. Now this is only P&L account for the year ended, and this is balance sheet with capital niche, and these are capitals. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. जो भी दिया है ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे लिखेंगे. इंश्योरेंस P&L डेबिट. अब हमारे पास P&L बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट है इन कॉलम में. इंश्योरेंस 15,000. अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा, डोंट एक्सपेक्ट इट फॉर 15 मार्क्स. ये 10 मार्क के लिए रहेगा, खाली P&L एंड बैलेंस शीट. ठीक है, देन लैंड एंड बिल्डिंग असेट. अच्छा ये बैलेंस शीट है तो मुझे ऊपर लेके जाना होगा. इंश्योरेंस हो गया, फिर लैंड एंड बिल्डिंग 50. मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान देना लैंड एंड बिल्डिंग को एवरीवन. अब मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग करता हूँ. यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस 30,000 रहेगा, बिकॉज इन बिटवीन द ईयर एडिशन है. एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, एडिशन ऑन 1st July 18 20. सो ऐसे मैंने 50 को दिखाया. यहां से आपको क्लिक हो जाएगा कि 30,000 पे मुझे पूरे साल का डिप्रिसिएशन देना है एंड 20,000 पे मुझे 9 मंथ्स का ही देना है. आगे सैलरीज 50,000 ही लिखा है, बट स्प्लिट करके लिखा. 2 सैलरीज. विचार कोई एडजस्टमेंट नहीं सैलरीज को 5,000. देन एक्सपोर्ट ड्यूटी कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिखो
2500 टू इंटरेस्ट एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है लोन पे 1000 फर्नीचर असेट फिक्स असेट स्पेस बहुत है तो कोई टेंशन नहीं फर्नीचर 40,000 incomes debtors 26,000 आगे नाना नानी कैपिटल बाय बैलेंस से ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे लिखो 50,000 देन 10% बैंक लोन लाइबिलिटी में 30,000 का बैंक लोन है 10% बैंक लोन इज 30,000 टेकन ऑन 1 अक्टूबर उसके हिडन एडजस्टमेंट है क्रेडिट का इंटरेस्ट पेंडल के क्रेडिट पे बाय इंटरेस्ट कोई हिडन एडजस्टमेंट वगैरह उस इंटरेस्ट को नहीं है बाहर बिल्स पेबल लायबिलिटी में बच्चों को लगता है 1,500 टैली हो गया वो रिसीव्ड वाला है और हम लोन लिए तो लोन का इंटरेस्ट डेबिट पे रहेगा क्रेडिट की लायबिलिटी क्रेडिट पे है लोन तो उसका इंटरेस्ट डेबिट पे रहेगा बिल्स पेबल विच इज 8,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं ये बहुत सिंपल था ट्रायल बैलेंस में इतना कुछ नहीं था ग्रॉस प्रॉफिट इज लिखो बाय जीपी ये कहां से आया ट्रेडिंग अकाउंट से आया 34,500 नेक्स्ट एक ही इफेक्ट रहेगा दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग के डेबिट पे होता है एंड सेकंड इफेक्ट पेंडल के क्रेडिट पे रहता है वो ट्रेडिंग क्लोज होके पेंडल ओपन हो जाता है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 months so less prepaid for 1st April 19 to 30th June 19 जिनको नहीं समझ में आता मैं उनके लिए यहाँ पे वर्किंग नोट डालता हूँ आई हैव लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर नीचे आपने इंश्योरेंस प्रीमियम निकाला 1st April 18 को 15 months तो आपका कहां पे ईयर खत्म हो जाएगा 31st March 19 यहाँ पे 12 months हो जाएंगे उस इंश्योरेंस के 15 मंथ में से 12 मंथ इस ईयर में खत्म हो गए एंड रिमेनिंग 3 months will end on 30th June 19 remaining 3 months will end in the next year 30th June 19 30th June 19 को एंड होंगे ठीक है सो कैन आई से जो मैंने 15,000 पेड किया है उसमें से 12 मंथ्स का करंट ईयर का है एंड 3 मंथ्स का नेक्स्ट ईयर का है 15,000 15 मंथ का है तो एक मंथ का 1,000 12 मंथ्स एक्सपेंस 3 मंथ्स असेट देयरफॉर 3,000 असेट एक्सपेंस में बचेगा 2018-19 का 12,000 एंड असेट में जाएगा प्रीपेड जिसको नहीं समझा प्लीज रेज योर हैंड अकॉर्डिंगली आई विल एक्सप्लेन यू ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं यू कैन रेज द हैंड आई विल एक्सप्लेन यू आगे नेक्स्ट depreciate landed building by 10% less depreciation on 30,000 paid 10% for the year 12 by 12 which is 3,000 and
20,000 पे 10% फॉर 9 months. 20,000 का 10% 2,000 आता है. 20,000 का 10% 2%. 9 months मतलब 3/4 पार्ट. 2,000 को 4 पार्ट में डिवाइड करो. 500, 500, 500, 500. उसमें से 3 पार्ट्स 1,500. टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 4,500. सो यहाँ पे बचेगा 45,500. ठीक है, आगे. एंड फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 5%. वहां पे मैंने एडजस्टमेंट कर दी. देखो वहां पे वर्किंग नोट कर दी. लेस डेप्रिसिएशन at the rate of 5%. 40,000 का 10% पूरे साल का आता है 4,000. मुझे हाफ चाहिए 2,000. So my the value will be 38,000. So land and building पे 4,500 depreciation and furniture पे 2,000. ऐसे 6,500 depreciation हो गया. P&L के डेबिट पे 2 depreciation on land and building and furniture. फर्नीचर का 2,000 है, इसका 4,500 है. टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज 6,500. माइनस फ्रॉम एसेट एड इन एक्सपेंस. माइनस फ्रॉम एसेट एड इन एक्सपेंस. उन्होंने बोला राइट ऑफ 1,000 एज ए बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5%. डेटर से माइनस करना है. लेस बैड डेट्स. माइनस बैड डेट्स. उन्होंने बोला है 1,000. $25,000 लेस 5% RDD. 25,000 का 5%. 25,000 का 5% which will be 1,250. पूरे साल 25,000 का 10% आता है 2,500. उसका हाफ चाहिए. 2,000 का 1,000. 500 का हाफ 250. 1,000 प्लस 250 1,250. सो माइनस करना है. सो पहले 25,000 से 1,000 गए, बचेंगे 24. 24,000 बचेंगे, उसमें से 250 गए तो 23,750. सो दोनों लॉसेस है. P&L के डेबिट पे 2 बैड डेट्स. ₹1,000 and to RDD 1,250. 1,250. आगे. अच्छा अथर्व कोई डाउट है तो यू कैन रेज द हैंड. यू कैन पिंग मी हियर. ठीक है. नेक्स्ट. किसी का है तो यू कैन पिंग मी. अगर किधर गलत लिया है मैंने कुछ. ठीक है. नेक्स्ट. आगे. हो गए यहां तक. अच्छा उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 34,500 ट्रेडिंग के क्रेडिट पे. बट ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं बिकॉज हमें डायरेक्टली जीपी दिया है. बट असेट में तो लिखना पड़ेगा ना क्लोजिंग स्टॉक. टैली कैसे होगा? इसको एक जगह पे लिखेंगे बस. क्लोजिंग स्टॉक. $34,500. Therefore your NP. कोई मुझे बोलेगा नेट प्रॉफिट कितना है? 2 नेट प्रॉफिट. Yes please. Net profit is 2,625. Each है क्या? 2,625. मतलब 50 to 50. Distributed between them. Nana and Nani. 2,625. बराबर.
देन कैपिटल में ऐड होगा बाय P&L. And therefore your capitals are इसका रहेगा 52,000 समथिंग 625 और इसका भी सेम रहेगा 52,625 52,625. यहां पे आ जाएगा कैपिटल्स. लोन के एडजस्टमेंट या मैंने लोन के एडजस्टमेंट की नहीं, फिर भी आपका आएगा. लोन इज ऑफ 30,000 तो P&L के डेबिट में आना चाहिए ना. यहाँ पे एड आउटस्टैंडिंग 500 टोटल होना चाहिए 1,500. आई होप आपने वो लिया है, उसके बाद आपका उतना आया है. एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500. नेक्स्ट. ठीक है. हाँ समझा वो कैसे लोन है. यहाँ पे जिनको नहीं समझा ध्यान देना. हमारा लोन हमने कब लिया है? 30,000 का लोन है. हमने लोन उठाया है, उन्होंने डेट भी दी हमें. हमने लोन उठाया है 1 अक्टूबर को. 30,000 का 10% फॉर 6 months. That will be 1,500. So interest expense should be 1,500. P&L के डेबिट आउटर कॉलम में 1,500 आना चाहिए. डेबिट आउटर कॉलम में 1,500 आना चाहिए. अभी 1,000 है तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 500. एडिंग एक्सपेंस 500, एडिंग लायबिलिटी 500. Therefore कैपिटल्स दोनों के मिला के कितने आएंगे? 1,05,250. Therefore liability will tally at बैलेंस शीट कितने पे टैली हो रही है? कोई मुझे बोलेगा बैलेंस शीट कितने पे टैली हो रही है? एनीवन? या इधर पिंक किया, किधर पिंक किया? कोई बोलेगा sir in the textbook they have taken trial balance, debit interest 1,000 separately and interest on the bank loan separately. No, that is wrong. Don't worry. ठीक है. ऐसे कैसे? ओवरऑल 1,500 आना चाहिए ना. So what is your answer now? Your net profit should come 5,250. ठीक है. And therefore I think it is 1,43,750. उनका रॉन्ग है. नहीं किधर तो डिफरेंस रहेगा शायद से. क्या रे? प्रीपेड 3,000 है ना. 1,000 का डिफरेंस है. ओके क्यों? ट्रायल बैलेंस टैली का देखो एक बार. एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस टैली का देखो. 15,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000 प्लस 40,000 प्लस 26,000. This is 1,39,500 minus 50 minus 50 minus 30 minus 1,500 minus 8,000. ट्रायल बैलेंस परफेक्टली टैली है. ट्रायल बैलेंस परफेक्टली टैली है. तो फिर मेरा टैली क्यों नहीं हुआ? लेट मी चेक एक बार. 34,500 plus 1,500. Credit total 36,000 minus
12,000, 5,000, 2,500, 1,500, 6,500, 1,000, 1,250. This is 6,250. 6,250. This is wrong. This should come 6,250. आपने टेक्स्ट बुक का बोल दिया मुझे. सो ये आएगा 3,125, 3,125. कैपिटल में ऐड होगा 3,125, 3,125. Three one two five, 3,125. So the capital will become 53,125, 50,125. ठीक है. नेक्स्ट आगे. यहाँ पे so 53,125 plus 53,125, 1,06,250 आता है. हो गया टैली. And therefore this should be 1,44,750. Textbook is definitely wrong. ठीक है. Textbook is wrong, definitely 100%. ठीक है. और कुछ क्वेश्चन में अलग था क्या? इंटरेस्ट डेबिट 1,500 होना, इतना मुझे पता है. आपने 1,000 पेड किया, फिर अगर आप बोलते हो सर वो इंटरेस्ट किसी दूसरे का है, तो किसका है मुझे बोलो ना. आपके पास लायबिलिटी साइड पे खाली लोन ही है, तो उसका वो इंटरेस्ट रहेगा ना. आगे ठीक है. आई थिंक आई एम क्लियर. किसी का डाउट है तो आई विल टेक दोस डाउट्स. वी हैव 5 मिनट्स टू गो स्टिल. अगर आप मुझे पूछते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट शुड बी, नो नो दैट्स रॉन्ग. हाउ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500 रहेगा? अरे डेबिट पे पहले ही 1,000 है ना. डेबिट पे पहले ही 1,000 है ना. If you're taken loan, if you're taken loan of 30,000 at the rate of 10% for 6 months, so निकालो ना 30,000 पे 10% for 6 months, it is 1,500. एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 1,500. उसमें से कितना पेड किया इंटरेस्ट? 1,000. तो एड इन एक्सपेंस 1,500, एड इन लायबिलिटी, एड इन एक्सपेंस 500, एड इन liability 500. Your interest cannot be more than 1,500 in any case, not less than, not more than. Exactly P&L के आउटर कॉलम में होना चाहिए 1,500. उसमें से 1,000 ऑलरेडी है, उसमें से 1,000 ऑलरेडी है. ठीक है. आगे अगर वो इंटरेस्ट उसका नहीं तो किसका है मुझे बोलो फिर. सर वो एडजस्ट होकर ट्रायल बैलेंस नहीं आता, मतलब डिडंट गेट. रक्षण में समझा नहीं तुझे क्या बोलना है. आई डिडंट गेट यू. You must have paid ना. To that extent your cash balance should have decreased. Okay. 1,000 के लिए कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ होगा. यस प्लीज. हाँ हाँ रक्षण बोल. हेलो सर. Yes.
सर वो इंटरेस्ट ऐसा एडजस्ट करके नहीं आया होगा? एडजस्ट करके आए ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 1000 रुपीज वो पेड हुआ है। आउट ऑफ 1500 1000 इज पेड, मतलब टू दैट एक्सटेंट माय कैश बैलेंस मस्ट हैव डिक्रीज्ड। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। पेड है, 500 पेएबल है। यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया, लेट मी चेक। ओके, हो गया। सो ओके, ऑन दिस नोट वी विल एंड टुडेज लेक्चर। हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। कल मॉर्निंग में ऑब्वियसली आई विल बी टेकिंग लेक्चर, ठीक है, कल होना चाहिए। सो कल हमारे 9 एंड 10 क्वेश्चंस मॉर्निंग में हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आई विल टेल यू, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। सो थैंक यू। जिनका फाउंडेशन है बराबर मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा आर्यन, अच्छा क्या है बोल रहे? हाँ यस आर्यन। Hello, sir. हाँ यस। Sir, can it be like that ki the interest which is written in trial balance that is paid and the interest in bank loan is still payable? So लेकिन वो किसका इंटरेस्ट है? अगर वो पेड है तो किसका है वो मुझे बोलना। the पिछले साल के बैंक लोन का or something else? नहीं बट ऐसे यू हाउ कैन यू एज्यूम दैट? इट इज वेरी क्लियर कि 1500 मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे वहां पे क्लियरली लिखा है टू इंटरेस्ट। मैं अलग एजम्पशन क्यों करते बैठो? अगर डोंट गो ऑन आंसर, अगर वो आंसर नहीं दिया होता तो क्या आंसर लेता? अगर उन्होंने तुझे वो 6 तेरा जो आंसर है, अगर वो आंसर नहीं दिया होता तू ये सोचता ही नहीं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, sir. तू उनके साथ मैच करने का सोच रहा है, तू उनके साथ मैच करने का सोच रहा है। अगर दे हैड नॉट गिवन यू द आंसर, योर आंसर वुड बी लाइक दिस ओनली, जो हमने किया है, ठीक है। या चलो, थैंक यू।